Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this second chapter, economics, where we are talking about people as resource. Again I'll tell you will be thinking कि मैम एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, because that's the most important example from your chapter, that is the Vilas and Sakal. Example of Vilas and Sakal जब हमने देखा, we understood how in one case the advantages that were given to the child, the privileges that was given to the child, and the help that was given to the child, it helped him to improve his skills. एक तरफ सकल था, एक तरफ विलास था. कितनी प्रॉब्लम्स हुई जब हमने देखा कि सकल की मदर जो है, सकल्स मदर, शी इज कुकिंग फूड, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ. Sakal's father Bhuta, he is cultivating the field, sells the product in the family and earns money for the family. तो ये था सकल की. लेकिन विलास के शीला अभी तो काम कर रही है, शी इज ऑल्सो वर्किंग. अपब्रिंगिंग द चिल्ड्रेन, आपको क्या लगता है मम्मी घर पे दिन भर है तो मम्मी काम नहीं कर रही हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, एक दिन घर में रह के देखिए, देयर इज सो मच ऑफ वर्क. Believe me children, there is so much of work. इतना ज्यादा काम होता है that you can't imagine and you can't think. Okay? Now, the work that is there, how people are managing this work, we are understanding that. ठीक है, सकल की केस में हमने देखा historical. अभी one thing more we need to understand, and that is the division of labor. एक बात जो समझने वाली है, that is division of labor. वैसे trends are changing, times are changing. अब ऐसा नहीं है कि women will do this work and men will do that work. No. Now with the changing times, the thought process of the people are also changing, where everybody is expected to do all kind of work. सबको सब तरीके का काम करना चाहिए, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है. हिस्टोरिकल रीजन है, कल्चरल रीजन है, हम ये नहीं कहते हैं गलत है. ठीक है, देयर इज डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड विमेन इन द फैमिली ड्यू टू हिस्टोरिकल and cultural reasons. There is division of labor between men and women in family. औरतों के लिए, मर्दों के लिए काम अलग होना चाहिए. विमेन क्या होता है, दे लुक आफ्टर द डोमेस्टिक वर्क, यू नो इट वेरी वेल, एंड मेन वर्क इन द फील्ड. ये यू नो, विमेन लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क एंड मेन work in the field. एग्जाम्पल के लिए हम फिर से वही जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, लेकिन why take that example? You can see the live example. लेकिन no, now the trend has changed. Many of you mother might be also going out to work. Yes, that is also the thing that is being followed. That is also the trend that we are following. Sakal's mother, Sheila, cooks food. Sakal's mother is doing all household. एक वर्ड आप देखोगे ना, कोर्स. ठीक है,
You know what is the meaning of this course? Course, कुछ लोग, some people pronounce it as course, some people pronounce it as chores. ये है जैसे हम हिंदी में there is one terminology that we very frequently use, कामकाज. कामकाज, कामकाज जो कहते हैं ना, that is what is the course all about. Got it? कि सब संभालना, काम काज की देखभाल करना, सही तरीके से सारी चीजों को मैनेज करना, that is called as the household course. I pronounce it course. Many people say chores, but technically the correct word is chores. Actually it is chores, लेकिन people avoid it. Women, लेकिन women are not paid. Women, Sakal's father Bhuta cultivates the field, sells the produce in the market and earns money for the family. Sakal's father Bhuta is looking after family and earning money. पैसे वो किसी न किसी तरह से कमा रहे हैं. बेटे को पढ़ा भी दिया और बेटे को अच्छी जॉब भी लग गई. Remember how nicely he was appointed in a computer industry. एक इंडस्ट्री में उसको काम मिल गया, and because of his software knowledge he developed a software due to which the company was very highly benefited. Because of this benefit, Sakal got promotion also, because the kind of work that Sakal has done, that was something very unique. Okay, तो अब ये देख लीजिए, Sheila is there. She is not paid for the services delivered for upbringing of the family. शीला को पैसे कहाँ मिल रहे हैं? मदर इज देयर ना, शकल्स मदर. Sakal's mother is not paid. Remember one thing here children, काम कहीं से भी वो कम नहीं कर रही हैं. She is not doing a less work or she is not working less. In fact, पिताजी जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा ही काम कर रही होंगी वो. तो their work is not accounted in the national income. The work of women, जबकि नेशन बिल्डिंग का काम कर रही हैं वो, is not accounted in the national income. कभी काउंट होता है, कभी भी काउंट नहीं होता है. काम इतना 12-12, 15-15 घंटे का काम करते हैं. आपके उठने से लेके, सोने से लेके, खाना बनाने से लेके, कपड़ा धोने से लेके, घर की साफ सफाई. यू थिंक दिस इज इजी? नो माय डियर चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी टफ जॉब. Their work is not accounted in the national income, which is a sum total of the goods and services produced in a country. GDP, that is there, the goods and the services produced in a country. जितना भी कंट्री में काम हो रहा है उसमें उनकी काउंटिंग कहीं भी नहीं होती है. अब ऑन दी अदर हैंड, गीता इज देयर, मदर ऑफ विलास. शी इज अर्निंग इनकम बाय सेलिंग फिश. फिश बेच के वो घर चला रही है. Women are paid for their work when they enter the labor market. काम मर्दों की तरह करेंगे तो, लेकिन घर में जो काम कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते ना औरतों की तरह जो काम कर रहे हैं. नो. Why this division of labor? Now this is finishing. Believe me children, you go to the big cities now, वहां पे you will find that male and female together are working, looking after the children, looking after the family and doing lots of work. Got it? That is there.
and Geeta, who is the mother of Vilas, earned an income. विलास की तो हालत ऐसी ही बहुत खराब थी. गीता, मदर ऑफ विलास, earned money by selling fish. औरतों को भी पैसे तब मिलते हैं, women are paid when they enter the labor market. Got it? Please understand. Women are paid when they enter the labor market. And she can barely minimum manage the household work. The women, तो क्या हो रहा है? They are earning. अब उसकी जो कमाई है, earning of Geeta is that of the male counterpart is determined on the basis of education and skill. आदमी भी तो fish ही बेच रहा है. The person sitting next to her is also selling the fish. एजुकेशन एंड स्किल जो है उसका काउंट होगा, बट इनका काउंट नहीं होगा. इनके लिए लेबर वाला काम हो जाएगा. गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड. मेल काउंटर पार्ट इट इज डिटरमिन्ड. क्या रे पढ़े लिखे नहीं ना है, उतना नॉलेज नहीं ना है, तो द पर्सन हु इज सेलिंग फिश नेक्स्ट सिटिंग नेक्स्ट टू हर, हाउ मच इज ही एजुकेटेड? ओके, सो their skill is assessed on the basis of their earning and education skills. दो बार स्किल्स हो गया है, बट सेंटेंस का सेंस आई वांटेड टू से कि मर्दों की भी तो एजुकेशन काउंट किया जाना चाहिए ना. मेल मेंबर्स, मेल काउंटर पार्ट्स, व्हाई देयर एजुकेशन इज नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन कंपैरिजन टू वुमेन, औरतों के कंपैरिजन में. Okay, so this is what that I wanted to point out. That is one of the very important factors. Okay, and much better use. क्या होता है कि education is very important. Education has to be seen into a very important manner because that is how the skill develops. Through education, skill develops. किसी भी इंसान के काम करने का वो जो है ना वो बढ़ जाता है कैलिबर, अगर एजुकेटेड है तो. बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इज डन अवेलेबल बिफोर हिम और हर. बेटर यूज ऑफ opportunities because of education. आप एजुकेटेड होते हैं ना तो क्या होता है, दिमाग बहुत तरीके से चलता है. ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, डू दीज वर्क्स इन दीज मैनर्स. इतने सारे तरीके से आप काम कर सकते हैं, ये चीज बताया जा सकता है. And education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. Education के दम पे ही decide होता है that how much the person can earn. On the basis you go for a job somewhere, they'll ask for your educational certificates. कितने पढ़े लिखे हैं? First question that is asked, what are your educational qualification? So education and skill are
बेटर डिटर्मिनेंट्स, बेटर डिटर्मिनेंट्स मतलब एजुकेशन के थ्रू ही आपका पता चलता है ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। मार्केट में है इतने सारे लोग हैं, कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, ऐसा कैसे, हाउ इट हैपन्स एंड व्हाई इट हैपन्स। ओके, ऑफ अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल in the market। मार्केट में वो कितना पैसा कमाएगा, कितना आगे बढ़ के काम करेगा, दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड। एंड मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, अभी क्या है कि वो काफी अभी भी women are there, believe me children, that's the real data, who have got meager education and low skill formation। एजुकेटेड नहीं होंगे तो स्किल उतना अच्छा डेवलप नहीं होगा ना। सो विमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन। मेजॉरिटी ऑफ विमेन हैव मेजॉरिटी ऑफ मियागर एजुकेशन, मियागर मतलब बहुत कम, लेस एजुकेशन। विमेन हैव गॉट मियागर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। मोस्ट विमेन हैव मियागर एजुकेशन and low skill formation। ठीक है, लो अब भाई वही बात आई टोल्ड यू ना कि एजुकेशन अगर लेस होगा तो आपकी कैपेसिटी, सोचने का, समझने का तरीका, इस सारी चीजों पे असर पड़ता है। Educated people think in a very different direction and take the actions also accordingly। उसी तरह से आगे काम भी करते हैं, उसी तरह का एक्शन भी लेते हैं, तो काफी इससे क्या होता है, फर्क पड़ता है। लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर एंड women आर पेड लो कंपेयर टू men। काम उतना ही करते हैं, बल्कि औरतें हो सकता है उससे ज्यादा काम कर रही हों, बट देन दे आर पेड लेस। women आर पेड लो कंपेयर टू men। Women are paid low compared to men। काफी कम सैलरी मिलती है औरतों को। You know, in the big business also, like film industry is there, singers are there, actors are there, मेल मेंबर्स उतना ही औरतें, बल्कि some women are very good actresses, but they are not paid as high as the male members। Okay, various activities relating to legal protection is meager। लॉ भी बहुत कम बने हुए हैं, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन फॉर women is less। Got it? काफी कम है। एंड एम्प्लॉयमेंट है कि इरेगुलर एंड लो इनकम, बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो नॉट रेडिली अवेलेबल। एक तो विमेन के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पीपल थिंक कि विमेन विथ हाई एजुकेशन, स्किल फॉर्मेशन, उनका दे आर पेड एट पार विद द मैन, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो खास करके। लेकिन विमेन के साथ एक है मैटर्निटी लीव, दे आर द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस आर आल्सो बोर्न बाय द विमेन। विमेन हैव टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, तो फैसिलिटीज लाइक मैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर, अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स आर लैकिंग। सोशल सिक्योरिटी ये और के अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है, एवरीबडी हैज टू लुक आफ्टर, everybody has to understand। Okay, so employment is characterized by irregular and low income। अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कानून बन जाए ना, तो भी चीजें काफी बदल सकती हैं। लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज
and lot of things will be very well managed. Now, when the things are being managed, जब इन सब चीजों को इतने अच्छे से मैनेज किया जाता है तो फिर ऑब्वियसली बदलाव तो बनता है, काफी सारी चीजें बदल भी जाएंगी, काफी सारी चीजें नई भी हो जाएंगी. मेनी थिंग्स विल हैपन इन अ न्यू मैनर. तो social security, women with high education and skill formation are paid at par with men. Women with high education are paid at par with men. मर्दों की जितनी सैलरी मिल रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में खास करके, ऑर्गेनाइज मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत औरतों का ख्याल रखा जाता है. सच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड दैट विमेन शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल इन डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क. बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना लेडीज, द विमेन आर नॉट डूइंग दिस स्मॉल लेबर काइंड ऑफ अ जॉब. ऑफिस में बैठ के दे आर वेरी मच वर्किंग टुगेदर विद द मैन. ओके, so women have entered the administrative and other services. So among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. Among organized sector, teaching and medical have attracted them most. सबसे ज्यादा यही दो सेक्टर्स हैं जो कि उनको आकर्षित करते हैं, जो कि उनको अपने तरफ खींचते हैं. आई एम स्टैंडिंग हियर सो यू कैन गेट एन एग्जाम्पल. यस, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ टीचर बाय चॉइस. हमेशा से मैं टीचर बाय चॉइस रही हूँ. इट इज नॉट दैट बाय चांस टीचर बन गए, कुछ नहीं बन पाए तो चलो टीचर. नो, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई ऑलवेज हैड द पैशन ऑफ बीइंग अ टीचर. सो दिस इज देयर दैट टीचिंग एंड मेडिकल डॉक्टर तो मैं उतना नहीं बन पाती बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. सो दैट ऑपरेशन एंड ऑल वो शायद उतना नहीं कर पाती. But then the other places are there जहाँ पे कि I have tried to prove myself. Got it? So women have entered. अभी क्या हो गया है? Lot of administrative jobs are also looked after by the women. बड़े बड़े पोस्ट पे औरतें हैं. Some women have entered the administrative and other services. Some women have entered administrative and other services. Got it? And including those who need high levels of scientific and technological services. जहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ नॉलेज इज नीडेड, वहां पे भी विमेन आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. ठीक है, लाइक हाई टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज. टेक्नोलॉजी नीड्स लॉट ऑफ स्किल बेस्ड वर्क. काफी मतलब कि साइंटिफिक काम जो होता है ना उसमें कहते हैं बहुत सोच समझ के करना पड़ता है. तो विमेन आर डूइंग वेरी वेल देयर ऑल्सो, हाई लेवल्स. ठीक है, क्लासमेट से अपने आस्क योर सिस्टर, आस्क योर हाउस में जो भी लेडीज आर देयर, आंटी हैं, सिस्टर इज देयर, भाभी इज देयर, क्या बनना चाहते थे, क्या बनना है, and how much education was needed, why didn't they pursue their dreams. Talk to them. घर पे हैं, ऐसे तो घर में रहने का टाइम नहीं मिलता था.
it is for the first time that you are staying back home, so you can very well talk to your loved ones and know about their ideas. अब क्या है कि please understand when we are talking about this, हमको ये देखना है, अगेन आई हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ विलास एंड सकल. व्हाट वाज लैकिंग देयर, सबसे ज्यादा जो चीज वहां पे जरूरी थी, दैट वाज दिस थिंग दैट वाज मिसिंग. ये कहीं ना कहीं पे मिसिंग था. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आई एम सॉरी, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. एजुकेशन बोलते बोलते ना, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. किस तरह के लोग होंगे, कैसा काम करेंगे, जिससे कि अच्छे से अच्छा उनको परफॉर्मेंस दे पाएंगे. आउटपुट अच्छा होना चाहिए. when they are living in the country, quality of population depends upon the literacy rate. कितने पढ़े लिखे, जितने पढ़े लिखे लोग होंगे उतना देश आगे बढ़ेगा. बिलीव मी चिल्ड्रन, quality of population depends on literacy rate. Got it? एक तो लिटरेसी रेट, पहला तो आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए. दूसरा हेल्थ. एक बीमार आदमी है, सारे टाइम आराम कर रहा है, सारे टाइम घर पे है एंड इज अनहेल्दी, क्या ऐसा आदमी करेगा? सो हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय health of a person indicated by life expectancy. कितने दिन तक, कितना, मतलब कि what is the caliber of that person? Are you understanding? कितना काम करवा सकते. skill formation acquired by the people of the country. Life expectancy, skill formation acquired by the people of the country. कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, all these are included in that. Okay, so ultimately growth rate of the country depends on the quality of population. किस तरह के लोग रह रहे हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं. एक वहां पे बॉक्स दिया हुआ है in your book. I would like to show that box to you. Come, let's see, then we will be continuing in the next class further. Okay children, चलो. So students, I wanted to show you this activity. The activity that is given here is very clearly demarcating and talking about the various kind of activities that people are taking up. क्योंकि हमने activities के बारे में पढ़ा. We have read in the last class only about the activities. इसमें कहा हुआ है visit a village और colony. भाई ये सब कुछ नहीं करना है. As you know, you can't interact with anyone, you can't go anywhere or talk to anyone. Just घर पे जितने लोग हैं, just see and check what is the work that they are doing, and ask the neighbors what is their profession, which 3 sectors they are working, they are involved in, and are the activities economic or non-economic activities. We have to see this also. So इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पे सम पॉइंट्स आर गिवन हियर. विलास इज सेलिंग फिश इन द विलेज मार्केट. प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ऑफ कोर्स फिश को डायरेक्टली पॉन्ड से उठा के ला के सेल कर रहे हैं, तो इट इज़ सेकेंडरी प्राइमरी एक्टिविटी.
then he cooks few food for his family, that is primary. Sakal is working in the private firm, it is tertiary. जब कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं कहीं पे भी और उसके लिए यू आर रेम्यूनरेटेड, आपको सैलरी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द टर्शियरी सेक्टर. एंड सकल लुक्स आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर रहा है सकल. तो ये क्या एक्टिविटी में आएगा? आर यू कंसिडरिंग इट एज एन एक्टिविटी? नो, दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, ऑफ द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, दैट इज़ देयर. ओके, सो यही एक था. वी हैव एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आज हमने पढ़ा. कल हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम दैट इज़ प्रिवेलेंट इन इंडिया. इंडिया में ये जो एजुकेशन सिस्टम है कितना कारगर है, कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, विल बी टॉकिंग अबाउट इट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.